Hello everyone, my name is Bahadur Mori and I am an English and SS teacher in Sarjan and English Medium School at Natejuna. And today we continue of this chapter number 1, Standard 10, chapter number 1, part 3 of this video. We reached at this point culture heritage of India, right? So we already knows what is meaning of heritage and what is meaning of culture, right? So now we're going to learn about culture heritage of Gujarat. Sorry, culture heritage of Gujarat. We reached over here. Culture heritage of Gujarat. अभी गुजरात का कौन कौन सा कल्चर है, कौन कौन सा उसके हेरिटेज प्लेसेस है, दैट वी गोइंग टू लर्न. वेरी इंटरेस्टिंग दिस वन बिकॉज वी आर गुजराती, so we have to know about our culture heritage. Right. So listen very carefully. I am going to read now. The places having cultures, legendary and archaeological importance are Lothal at Dholka Taluka, right, Ahmedabad. Rangpur, Limdi Taluka in Surendragarh district. Dholavira, Kutch district. Rojri or Srinathgarh, Rajkot district, etc. See, these are our culture heritage places. Very famous culture heritage places. Please underline. गुजरात के जो very prominent places है that are having a very culture, very ancient culture. These are places is Lothal, Dholka Taluka, Ahmedabad district. रंगपुर, लीमड़ी तालुका, सुरेंद्रनगर. धोलावीरा, कच्छ डिस्ट्रिक्ट. रोजड़ी और श्रीनाथगढ़ है वो राजकोट डिस्ट्रिक्ट में है. प्लीज अंडरलाइन दिस वन. रोजड़ी और श्रीनाथगढ़ राजकोट डिस्ट्रिक्ट में. द प्लेस ऑफ पिलिग्रिमेज, विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर, ठीक है. स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका एट जूनागढ़. सन टेम्पल ऑफ मोडेरा गेट ऑफ चंपानेर. रुद्र महालय ऑफ सिद्धपुर. Mansar Lake of Viramgam, Jama Masjid of Ahmedabad, Julta Minara, Shaking Tower also in Ahmedabad, Siddhi Zaini Jali also in Ahmedabad, Siddhi Sen Grill, Temple of Hathi Singh, and Sastralinga Lake of Patan, and Rajmahal of Vadodara, Tomb of Muhammad Khan, and the Parsi Agyari of Navsari are worth seeing places. See, these are very worth seeing. That means काफ़ी prominent and काफ़ी famous places है. अगर हम इसको visit करते हैं, that we get the more information about our history, about our heritage. So these are a places name. It's a informatic paragraph. It is a informatic paragraph that you have to keep in your mind. काफ़ी डिटेल्स में है तो आप टेंशन मत लो. आपको इसको मेमोराइज करने के लिए एक सिंपल सा फंडा यूज़ करना है. सभी पॉइंट्स को पिक आउट करना है. दैट मीन्स जस्ट पिक आउट दैट पॉइंट एंड राइट डाउन इन योर बुक्स स्टेप बाय स्टेप. सो यू कैन ऑटोमेटिकली मेक अ वन लाइन क्वेश्चन. सो यू विल इजीली मेमोराइज, राइट. सो ये जो सारे प्लेसेस है, these are belong to culture heritage of Gujarat. Very important topic this one according to our exams. So please memorize this one. ये informative paragraph था that I not need to explanation. You have to memorize, right. Then further, please having religious importance are the which are the places having religious importance. देखो ये तो two parts में है. These are the heritage. Now which are the places which is having religious importance? Please make underline religious important places, so that you can make a two part of Gujarat culture heritage places. You can divide it. Which are the archaeologically site, prominent places like Dholavira, Kutch, right, and Ahmedabad places like Lothal, right, Dholka Taluka, Rangpur, Limdi, Surendranagar, Dholavira, Kutch, Rojri, Srinath and Rajkot, Srinathgarh, Rajkot district. These are very prominent legendary places according to archaeologically site. तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है द कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात. यू मेक अ टाइटल कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात. इन दैट टाइटल यू हैव टू मेक अ वन पॉइंट. दिस इज आर्कोलॉजिकली इम्पोर्टेंस. क्या लिखना है आपको? आर्कोलॉजिकल इम्पोर्टेंस. उसके नीचे लिखना है आपको आर्कोलॉजिकल इम्पोर्टेंस. सो विच आर द प्लेस विच इज इम्पोर्टेंस अकॉर्डिंग टू द आर्कोलॉजिकली इम्पोर्टेंस. तो उसके अंदर आपको लिखना है लोथल, और ब्रैकेट में लिखना है लोथल तालुका यानी कि धोलका तालुका में आया हुआ है. देन आपको लिखना है रंगपुर, वो है लिमड़ी सुरेंद्रनगर में. उसके बाद इसके साइड में लिखना है धोलावीरा कच्छ, रोजड़ी श्रीनाथगढ़ राजकोट. ये हो गया आपका इम्पोर्टेंस प्लेसेस अकॉर्डिंग टू द आर्कोलॉजिकली या लेजेंड एंड आर्कोलॉजिकल इम्पोर्टेंस प्लेसेस. दीज आर लेजेंडरी आर्कोलॉजिकली इम्पोर्टेंस प्लेसेस. दीज आर एक हो गया. अब नेक्स्ट क्या है? पिलिग्रम प्लेसेस.
यानी तो उसके दूसरा पैराग्राफ आपको बनाना है विद द हेडिंग विद द प्लेसेस ऑफ पिलिग्रिमेज। क्या बनाना है आपको? प्लेसेस ऑफ पिलिग्रिमेज, ठीक है। पिलिग्रिमेज प्लेसेस का पिलिग्रिमेज आपको लिखना है। उसके नीचे कौन कौन से प्लेसेस है जो गुजरात में कल्चर हेरिटेज के बिहाफ से पिलिग्रिमेज प्लेसेस हैं। दीज आर द प्लेसेस ऑफ वडनगर टावर, विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर, ये लिखना है आपको, विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर। देन लिखना है स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका, विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर, स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका एट जूनागढ़, वो जूनागढ़ में है। फिर लिखना है सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, ठीक है। देखो क्या हुआ है, पिलिग्रिम प्लेसेस में वडनगर है और जूनागढ़ का अशोका इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, राइट। एंड देन लिखना है आपको सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, राइट। और उसके बाद लिखना है गेट ऑफ चंपानेर, और पंचमहाल में चंपानेर में लिखना है आपको, ठीक है। गेट ऑफ चंपानेर। रुद्र महालय लिखना है, रुद्र महालय ऑफ सिद्धपुर। देन मानसरोवर लेक ऑफ विरमगाम एंड जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद एंड झूलता मीनारा शेकिंग टावर, सिद्धी सैयदनी जाड़ी, टेम्पल ऑफ हठी सिंह एंड सशस्त्रलिंग लेक ऑफ पाटन, सशस्त्रलिंग लेक ऑफ पाटन, राजमहल ऑफ वडोदरा, टॉम्ब ऑफ मोहम्मद खान पारसी, खान और पारसी अग्यारी ऑफ नवसारी आर वर्शिप्ड। दीज आर द प्लेसेस ऑफ पिलिग्रिम प्लेसेस, ठीक है। इन द एग्जाम आपको पूछा जाए कि व्हाट आर द प्लेसेस विच आर वेरी प्रोमिनेंट इन एज ए पिलिग्रिम प्लेसेस, एक्सप्लेन द पिलिग्रिम प्लेसेस ऑफ कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात, तो यू विल राइट दिस वन ऑल द प्लेसेस, ठीक है। उसके बाद है प्लेस हैविंग रिलीजियस इंपॉर्टेंस, तो विच आर द प्लेसेस हैविंग रिलीजियस इंपॉर्टेंस, तो आपको पॉइंट बनाना है रिलीजियस इंपॉर्टेंस का, वो लिखना है। उसके अंडर में कौन कौन से आएंगे तो इजीली आपको याद रह जाएगा। रिलीजियस इंपॉर्टेंस आर, तो कौन कौन से रिलीजियसली इंपॉर्टेंस है, द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ द्वारका, शारदापीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य। उसके बाद लिखना है सोमनाथ टेम्पल, वन ऑफ द 12th ज्योतिर्लिंगा, वो भी लिख लेना। अंबाजी नॉर्थ गुजरात, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में अंबाजी। बहुचराजी महसाणा डिस्ट्रिक्ट, रणछोड़राय टेम्पल डाकोर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड शामळाजी अरवली डिस्ट्रिक्ट। दीज आर द इम्पोर्टेंट प्लेसेस रिगार्डिंग रिलीजियस। देखो and the cultural heritage of Gujarat में we have divided now onward 3 parts. First is a archaeological importance, second is a pilgrim places, ठीक है, archaeological importance, ठीक है, then pilgrim places and then religious importance. 3 point. How many point? 3. Archaeological important places are in Gujarat, religious importance are in Gujarat and पिलिग्रिमिक प्लेसेस यानी पवित्र स्थान जिसको बहुत प्योर कहते हैं, तो पिलिग्रिमिक प्लेसेस आर इन गुजरात। 3 डिवाइड में आपको उनको डिवाइड कर देना है। देन नाउ वेल नोन रिलीजियस सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेस इन गुजरात द आर पोलो फॉरेस्ट, दीज आर द पोलो फॉरेस्ट एंड विजयनगर साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट। काइट फेस्टिवल कांकरिया कार्निवल अहमदाबाद में होता है। तानारीरी फेस्टिवल वडनगर में होता है, जरा वो ब्रैकेट में कर लें। तानारी फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन वडनगर। Northern Dance Festival Modera and Ranotsav in Kutch, etc. These are the our festivals, tourism oriented places, right? Tourist places of Jain and Buddhist. Which are the places regarding to Jain and Buddhist? Jain and Buddhist religions prevailed in India and consequently Jain and Buddhist cave are sent in various places in Gujarat. Vadnagar, Taranga, Khambaliya, Sambalaji, Koteshwar, Talaja, Dhak, Jagadia, right? Jagadia, these are the places regarding the Jain and Buddhist cave, ठीक है। So very easy to have to memorize, right? So now you just recall yourself. First is a archaeologically important site. What is your point? Archaeologically important site. These are the places of archaeologically important places are cultural heritage of Gujarat are लोथल, ठीक है, धोलका तालुका, रंगपुर, लिंबड़ी, सुरेंद्रनगर, धोलावीरा, कच्छ, रोजड़ी and Srinathgarh, Rajkot. These are the important places of archaeologically. Which are the places of importance of pilgrimage? Culture heritage of Gujarat. In the culture heritage of Gujarat, which are the places of pilgrimage importance? So you will going to write answer. The pilgrim places importance are in the Gujarat culture heritage. These are Victory Tower of Vadnagar,
stone inscription of King Ashoka at Junagadh, Sun Temple of Modhera, Gate of Champaner, right, and Rudra Mahalay of Siddhupur, Mansar Lake of Viramgam, Jama Masjid of Ahmedabad, Jumta Minara, Shaking Tower in Ahmedabad, Siddhi Said Nijali Grill, Ahmedabad, Temple of Hati Singh, Sasatra Ling Lake of Patan, Raj Mahal of Vadodara, Tomb of Muhammad Khan, Parsi Agyari of Navsari. These are all the pilgrimage places. देन मैंने आपको 3 डिवाइड किया है कि प्लेस रिलीजियस हैविंग इंपॉर्टेंस, तो जो धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, दीज आर द्वारकाधीश एंड यू ऑल नो, राइट. सो दीज आर यू कैन इजीली मेमोराइज, राइट. नाउ नेक्स्ट इज अ फेयर ऑफ गुजरात. गुजरात के मेले, वेरी इंपॉर्टेंस पॉइंट दिस वन कि किस तरह से गुजरात के मेले इंपॉर्टेंस है. सो फेयर ऑफ गुजरात, सी दिस इज इंफोनेटिक paragraph over here, the chart over here, emphatic charts. See, varied culture of Gujarat is seen in many places, right? This we know. Hence, fair having traditional, religious, and social importance are held. Some important fair among the are given below. These are the important fair in Gujarat that we have to keep in our mind. First fair, name of the Modhera fair. Where it is organized? It's organized in Modhera, Mehsana district. एंड तिथि टाइम फॉर फेयर, वोट आर द टाइम, तिथि हिंदू कैलेंडर हिसाब से तिथि बोलते हैं उसको. 3rd वीक ऑफ जनवरी एंड श्रावण शुद्ध अमावस्या, श्रावण शुद्ध अमावस के दिन ये मोढेरा फेयर होता है. 3rd वीक ऑफ जनवरी में होता है, श्रावण शुद्ध अमावस में. देन है बहुचरा जी फेयर, जो बहुचरा जी में ही है महसाणा में. दूसरा फेयर भी महसाणा में है, तो वो तिथि के हिसाब से है चैत्र शुद्ध पूनम में. देन शामलाजी ठाकुर जी फेयर है, शामलाजी में है. देखो, वी हैव अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन दैट मोढेरा, बहुचरा, शामला, दीज आर ऑल्सो नेम ऑफ प्लेस ऑल्सो. सो यू डोंट नीड टू मोर वर्क ऑन मेमोराइज. मोढेरा फेयर, इट्स मोढेरा महसाणा, बहुचरा, बहुचरा महसाणा, शामलाजी, शामलाजी अरवली डिस्ट्रिक्ट, राइट. you have to work more, you have to just use more force to in your mind for memorize the tithi and time. ठीक है, इसी को याद करना, थोड़ा वर्क कर. यू हैव टू मोर वर्क ऑन योर तिथि एंड टाइम, यू हैव टू मेमोराइज. शामलाजी ठाकुर जी फिर शामलाजी अरवली डिस्ट्रिक्ट में है. कार्तिक शुद्ध 11/9 टू पूनम तक चलता है. भादरवी पूनम फिर अंबाजी का होता है बनासकाठा में, भादरवी शुद्ध पूनम के दिन. भवनाथ फिर गिरनार जूनागढ़ में होता है. माधवद 9 से लेकर 12 तक तिथि है वो. तरनेतर फेयर तरनेतर में होता है सुरेंद्रनगर में. फेमस फेयर है, भद्रपाद में होता है. भद्रपद जो होता है उस तिथि में होता है. बड़ियादर फेयर बड़ियादर अहमदाबाद में होता है. राजयोग मंथ डेट पे 9, 10, 11 में होता है. नक्कलगंग फेयर कोलियंक भावनगर में होता है रे, ठीक है, वो भाद्रवद और अमावस में होता है. एंड माधवपुर फेयर होता है माधवपुर पोरबंदर में, चैत्र शुद्ध 9 से 13 तक. और वोठा फेयर, वोठा काफ़ी फेमस है. ये वोठा धोलका अहमदाबाद बहुत बड़ा फेयर होता है. वोठा फेयर धोलका अहमदाबाद में होता है कार्तिक शुद्ध पूनम के दिन. ये थोड़ा इम्पोर्टेंस है. मीरा दातार फेयर उन्नाव में होता है, महसाणा, रजब मंथ के हिसाब से होता है. डांग दरबार फेयर अवध में है. और गोल गधेड़ा फेयर, प्लीज़ ये भी इम्पोर्टेंस है. गोल गधेड़ा फेयर ये गरबड़ा में होता है, दाऊद में. 5 to 7 days after Holi. After Holi, 5 to 7 days, this fair organized. कार्तिकी पूर्णिमा फिर सोमनाथ गिरी में होता है, कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा, ये भी इम्पोर्टेंस है. एंड बंगोरिया फेयर क्वाट यानी छोटा उदयपुर में होता है, क्वाट में होता है. होली टू रैंक द पंचमी. दीज आर द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन. यू हैव टू daily based revisions you can keep in your mind, but you can easily make the chart, so that much better to understand, right. Then after we going to now we have a point India, land and people, ठीक है. So now ये है importance explanation paragraph that I need to explanation more. तो इंडिया, सो इंडिया का लैंड और पीपल कैसा है. लैंड दैट यू नो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लैंड, एंड पीपल दैट वी आर पीपल ऑफ इंडिया, राइट. सो नाउ see, primitive man came into existence in eastern South Africa. Primitive man came into existence in eastern South Africa. Please underline this one. Prominent, right, that means forefather kind of very ancient peoples these are. And mesmerized by the varied and prosperous heritage, many foreign tribes came to India, and consequently the remains of all tribes are found here.
See, many of the people came to India for trading, for business, for a settle down, for other things, and they all are settled down over here. काफ़ी लोग आए यहाँ पे और they are settled down, right? And they stay here and they finally mingling in the Indian culture. The Dravidians were considered to be the most ancient people of India. Please underline this one. The Dravidian were considered to be the most ancient people of India. तो कौन से लोग हैं जो इंडिया के सबसे पुराने लोग हैं, एंशियंट पीपल है, सबसे जैसे जो बेस ऑफ इंडियन कहा जाए, जो मूल इंडियन जिसको हम बोलेंगे, वो आर द रूट इंडियन ऑफ या वो आर द नेटिव इंडियंस. सो वी कैन से अकॉर्डिंग टू अवर चैप्टर Dravidians, right? The Dravidians were considered to be the most ancient people of India. Please underline. But the modern researcher of linguistic यानी लैंग्वेज के रिलेटेड जो रिसर्च होते हैं उसको लिंग्विस्टिक कहते हैं. एंड एंथ्रोपोलॉजी हैव प्रूव दैट इवन बिफोर द द्रविडियन 6 मोर ट्राइब कैम एंड सेटल इन इंडिया. तो ये लिंग्विस्टिक या बहुत एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जो पीपल के रिकॉर्डिंग स्टडी करते हैं. उन लोगों ने कहा कि द्रविडियन से पहले या द्रविडियन के साथ, उससे पहले या उसके बाद या उसके साथ 6 मोर ट्राइब थे. ठीक है, 6 मोर ट्राइब थे. दे ऑल्सो केम टू इंडिया एंड सेटल डाउन इन इंडिया. सो वी कैन से दैट द्रविडियन इज द मोस्ट एंशिएंट पीपल ऑफ इंडिया, बट ऑल्सो 6 ट्राइब दैट वी गोइंग टू लर्न विच आर दिस 6. बट that 6 tribe also contemporary of Dravidians. Contemporary of Dravidians, वो भी समकालीन है, contemporary of Dravidians. So 6 more tribes that we settled down in India. Let's explore more about them. So which about we will going to learn about them. The 6 more tribe which is already also same like Dravidians. ओके, तो वो भी द्रविडियन की तरह ही है, इंडिया में सेटल हुए. फर्स्ट है नेग्रिटोइड, उसको हब्जी पीपल भी बोलते हैं. नेग्रिटोइड some this the informative paragraph and also when the need explanation I will explain you. So if I tell you underline, so please underline because that point very important, that I am telling, that's why I am telling you. Some historian believe that Negrite or Negros are the most ancient inhabitant of India. Please break it. देखो, in the exam अगर आपको पूछा जाए कि some historians यानी कुछ ऐतिहासिककारों के हिसाब से सबसे पुराने लोग कौन हैं, अगर ऐतिहासिककारों के हिसाब से अगर पूछा जाए तो यू विल गोइंग टू आंसर नेग्रेट और नेग्रोस पीपल मोस्ट एंशिएंट पीपल ऑफ इंडिया, इनहेबिटेड पीपल ऑफ इंडिया. अगर नॉर्मली पूछा है कि विच पीपल वर कंसिडर टू बी द मोस्ट एंशिएंट पीपल, विच पीपल्स या विच ट्राइब वर कंसिडर टू बी द मोस्ट एंशिएंट पीपल ऑफ इंडिया, सो यू कैन से द्रविडियंस. क्लियर? They now Negrite came from Africa via Balochistan to India, and they were black, having height of 4 to 5 feet and curly hair. So we know that Husby people still we can see in Gir areas, right? Also in the some of area in the Giri places, if we visit a Gir and the Junagadh Gir Somnath district, so then you can find out some Husby people that you can see. They curly hair and height होते हैं 4 से 5 curly hair होता है. That kind of this grooming explanation. This one, what kind of people they look, how they look, Negrite people. So you can say that they black, having the height of 5 to 4 feet and curly hair. These are the explanation of Negrite. उसके बाद है एस्ट्रोलॉइड यानी निषाद पीपल. प्लीज ये याद रखना, अंडरलाइन कर लो इसके कि व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ निषाद या वर्ड कॉल्ड निषाद पीपल. तो वी कैन ऑल्सो दे एस्ट्रोलॉइड ऑल्सो नोन एज अ निषाद पीपल. निषाद. Okay, I am going to read now. People of this tribe came from Southeast Asia. Please underline. People of this tribe came from Southeast Asia. Southeast Asia. ठीक है. The physical feature. So what are the physical feature of Astronoidea? What are the physical feature of Nishad people? So you are going to answer this. Nishad people के physical features क्या है? What are the physical feature of Negrite that you know? Now what are the physical features of Australoid या Nishad people? Sorry. What are the physical feature? were black skin with a broad head. Black skin होता है, broad head होता है, flat nose, short in height. This one your answer. Black skin with broad head and flat nose and short height, right? Now Aryan who came later on to India called them Nishad. Please underline. The Aryan who came later to India called them Nishad. वहाँ तक underline कर लो.
आर्यन who came to after the निषाद, राइट, आफ्टर द ऑस्ट्रेलियन, वो आर्यन, ये निषाद और ऑस्ट्रेलियन को ऑस्ट्रेलॉइड को बोलते थे निषाद। कौन कौन सा ट्राइब निषाद कहता था ऑस्ट्रेलॉइड को? आर्यन लोग इसको निषाद, इन पीपल को निषाद कहते थे, ठीक है। वो आर्यन लोगों ने नाम दिया है निषाद पीपल, नेम गिवन बाय द आर्यंस, ठीक है। तो द ओरिजिन्स ऑफ ट्राइब लाइक कोल एंड मुंडा, खासी ट्राइब ऑफ आसाम, द ट्राइब्स ऑफ निकोबार एंड म्यांमार हैव सिमिलरिटी टू ऑस्ट्रेलॉइड। सी, वेरी इंपॉर्टेंट, द ओरिजिन्स ऑफ ट्राइब लाइक, तो कौन से पीपल है जो नाउ वी कैन से लाइक दिस इन द जेनेटिकली नॉट बट फिजिकली स्ट्रक्चर एंड फिजिकली फीचर्स दैट वी कैन सिमिलरिटी इन Australoid people, Nishad people have like Kol and Munda peoples, Khasi people, tribe of Assams, Khasi people, tribe, these are the tribe of Assams. Kol, Munda and Khasi, tribe of Assam, these are the tribe of Assam. Please underline only Kol, Munda, Khasi, tribe of Assam. The tribe of Nicobar and Myanmar also having a similarity like Astronite. ये जो निकोबार और म्यांमार के पीपल है वो भी इन लोगों के जैसे लगते हैं, ठीक है। तो उन लोगों की सिमिलरिटी है, कोल, मुंडा, खासी पीपल्स है आसाम के, और निकोबार म्यांमार के जो पीपल है उन लोगों को ये निषाद पीपल के साथ सिमिलरिटी बनती है। तो जो निषाद नाम है वो आर्यन ने दिया है, ठीक है, वो ज़रा याद रखना। देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज इमेंस। क्या ओबियसली उनका जो योगदान है बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है, बहुत ह्यूज है। They made every tribe and every people who came to India and settled down. They also given his more immense contribution to develop Indian culture, to develop civilization of India. So every tribes people contribute to more and more. So you can use this line in every point. They made clay utensil. अभी देखो, अभी निषाद ने अभी यू हैव टू मेमोराइज दिस पॉइंट। देखो ये इसी से आप क्लेरिफाई कर पाओगे शॉर्ट क्वेश्चन को कि क्या क्या डिफरेंट है इन पीपल में, ठीक है। निषाद पीपल इंट्रोड्यूस द क्ले यूटेंसिल, आप याद रख लेना। निषाद पीपल ने क्ले यूटेंसिल जो माटी काम होता है वो इंट्रोड्यूस किया है इन द इंडिया, ठीक है। सो दे मेड अ क्ले यूटेंसिल। विच ट्राइब्स मेड अ क्ले यूटेंसिल? योर आंसर विल बी ऑस्ट्रोनाइट या निषाद, ठीक है। वोर क्लॉथ कॉटन्स एंड न्यू मेनी अदर स्किल्स। देखो, दे ऑल्सो वोर द क्लॉथ एंड कॉटन। हु? निषाद पीपल वॉर, पहनते थे क्लॉथ एंड कॉटन, पुट ऑन इज ऑन हिज बॉडी, पुट ऑन कॉटन क्लॉथ इज एंड मेड अ यूटेंशियल स्किल। ये दो चीज़ याद रखना, ठीक है। न्यू ऑल्सो दे नो द मेनी अदर स्किल। दे हैड अ ग्रेट रिलीजियस बिलीफ टू। दे हैव धर्म के बारे में बहुत सा बिलीफ थे उन लोगों को। दैट टू थिंग्स दैट यू हैव टू मेक अंडरस्टैंड। दे मेड अ क्ले यूटेंसिल, वोर क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ। प्लीज अंडरलाइन दिस वन, राइट। सो ये हो गया निषाद पीपल। कुछ चीज़ें दैट यू हैव टू मेमोराइज। निषाद पीपल केम टू फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, दिस पॉइंट अंडरलाइन। What are the physical features of Nishad? What were the physical features of Nishad? Black skin with broad head, flat nose, clear and short height. Then एक key point है that the Aryan who came to later, they called the tribe of Nishad, called them Nishad. The Aryan who came later into India, they called them Nishad, ठीक है, they called them Nishad, उनको निषाद। ये दो चीज़ आपको, तीन चीज़ याद रखनी। देन इन द विच आर द पीपल इन इंडिया राइट नाउ सिमिलरिटी, वी कैन सी द सिमिलरिटी इन इंडिया इन द विच ट्राइब्स। सो द ओरिजिनेट ऑफ द ट्राइब्स लाइक कोल, मुंडा एंड खासी। कोल, मुंडा एंड खासी विच ट्राइब्स ऑफ आसाम? द आसाम के ट्राइब्स है कोल, मुंडा और खासी। दे हैव सिमिलरिटी ऑफ निषाद पीपल एंड ऑल्सो निकोबार और म्यांमार पीपल हैव सिमिलरिटी ऑफ निषाद पीपल, क्लियर है। Then they were given the many contribution to develop Indian culture and civilization. Which kind of contribution they given to? So we can say that they made a clay utensil. Clay utensil निषाद people बनाते थे, याद रखना। और who which people wore a cotton clothes? तो निषाद people, ठीक है, good. Now third one is the Dravidians, very important people according to the as I consider the most ancient people in India, right? Now we going to knows about them. What they are, very important, very informative paragraph this one. Dravidians were considered to be the creator of Sindhu Valley civilization of Mohenjo-daro and the direct descendant of stone
our culture. Please underline. Dravidians is very important people who came to India, and basically they are the native Indian also called. But see, underline this one. Dravidians were considered to be a creator of Sindhu Valley civilization. Please memorize. जो सिंधु वैली सिविलाइजेशन है वो क्रिएट द सिंधु वैली सिविलाइजेशन एंड मोहनजोदड़ो. सो योर आंसर विल बी द्रविडियंस. ठीक है. एंड डायरेक्ट डिसेंट ऑफ द स्टोन कल्चर. वो इंट्रोड्यूस द स्टोन कल्चर दैट आल्सो बाय द द्रविडियंस. So Sindhu Valley civilization of Mohenjo-daro and direct descent of the stone culture also introduced by also given by the Dravidians. ठीक है. The tribe which came from north survive with their, so tribe which came from north. Please underline. The Dravidians came from north. तो north में underline कर लो. North से आए थे ये लोग. Survive with their language and culture features. They also survived with their language and culture features. Later on they were only called Dravidians. उसके बाद उसको सिर्फ द्रविडियन ही कहा जाने लगा. Dravidians gave the concept of mother. Please now underline also. Dravidians gave the concept of mother as a goddess. भगवान जो देवी है उसको माँ कहते हैं, हमारी भगवान है. ठीक है. देवी देवता जो पूजा. एंड फादर ऑफ गॉड. जो गॉडेस और भगवान का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो गिवन बाय द द्रविडियंस. प्लीज अंडरलाइन. द द्रविडियंस गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ द मदर एज ए गॉडेस एंड फादर एज ए गॉड. भगवान हमारे पिता है और देवी जो है हम जिसको पूजा करते हैं, है ना, जो उसको हम गॉडेस कहते हैं. वो ज़रा वो याद रख लेना. So the thought of Parvati and Shiva as mother and father developed, right? तो जो थॉट है कि पार्वती वो माँ है और भगवान शंकर है वो पिता है, उन लोगों ने धरती का सृजन किया है. दिस कॉन्सेप्ट गिवन बाय द द्रविडियंस. तो जरा याद रखना. फादर डेवलप. तो मोर एवर द ट्रेडिशनल ऑफ वर्शिप एंड नेचर इज द गिफ्ट ऑफ द द्रविडियंस. ठीक है. तो ट्रेडिशनल ऑफ वर्शिप जो अभी ये भी ट्रेडिशनल ऑफ वर्शिप है वो भी गिवन बाय द द्रविडियंस. तो इन शॉर्ट द्रविडियंस एंड हिंदूज हैव अ मोर सिमिलरिटी, है ना. तो हिंदू ऑल्सो ट्रेडिशनल ऑफ वर्शिप, है ना. एंड नेचर इज द गिफ्ट ऑफ द्रविडियंस. तो जो वर्शिप नेचर है वो भी द्रविडियन की गिफ्ट है. हम जो पूजा पाठ करते हैं द्रविडियंस की गिफ्ट है. गॉड और गॉडनेस का जो कॉन्सेप्ट है द्रविडियन ने दिया है. भगवान शिव और पार्वती को एज ए मदर और एज ए फादर एक्सेप्ट किया, जिसने इस डेवलप किया पूरे अर्थ को, वो भी कॉन्सेप्ट द्रविडियन ने दिया है. वो जरा आप याद रखना. और जो लैंग्वेज डेवलप और जो उनका जो वो बेसिकली दे कैम फ्रॉम द नॉर्थ. ठीक है. विद द कैम फ्रॉम नॉर्थ से. कौन से नॉर्थ से? वो तो इंडिया के नॉर्थ से ही बोलते हैं अभी उसको कि इंडियन नॉर्थ से ही है. ठीक है. वो बिल्ड द सिंधु वैली सिविलाइजेशन ऑफ मोहनजोदड़ो. तो दैट आल्सो कंसिडर एज ए द्रविडियन बिल्ड द सिंधु वैली सिविलाइजेशन. ठीक है. सो स्टोन कल्चर तो काफ़ी इंपॉर्टेंस पॉइंट है. स्टोन कल्चर, सिंधु वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो, गॉड गॉडेस कॉन्सेप्ट, भगवान शिव का जो कॉन्सेप्ट, वर्शिप कॉन्सेप्ट, नेचर ऑफ वर्शिप, वो सारे द्रविडियंस है. ठीक है. दैन द ट्रेडिशनल ऑफ वर्शिप विद धूप. ये भी देखो, ये भी धूप दीप यानी सब कुछ है जो हम जो भी पूजा पाठ करते हैं देयर आल्सो गिवन बाय द द्रविडियंस. दीप यानी लैम्प जो लाइट कर दिए और धूप और अगरबत्ती करते हैं वो सारा सब कुछ, और आरती और सब जो करते हैं उसे सारा कंसिडर. तो इन शॉर्ट हिंदू रिलीजन्स कॉन्सेप्ट है जो धूप है, दीप है, आरती है और वर्शिप प्रोसेस है. वी प्रे टू आइडल प्रे करते हैं, आइडल को वर्शिप करते हैं, बिलीव करते हैं गॉड गॉडिस में. ठीक है. और दीज ऑल द कॉन्सेप्ट गिवन बाय द द्रविडियंस. और एक चीज़ आपको याद रखनी, दे केम फ्रॉम द नॉर्थ. एंड वन मोर थिंग दैट दे कंसिडर एज अ क्रिएटर ऑफ सिंधु वैली सिविलाइजेशन ऑफ मोहनजोदड़ो. ये याद रखना है. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स विच इज़ वेरी टू मच इन्फ्लुएंस टू इन इंडिया दिस पीपल्स. सो ये हो गया. आरती कंसिडर टू बी द गिफ्ट ऑफ द द्रविडियंस. ये सारे गिफ्ट द्रविडियंस के हैं. सो विच आर द गिफ्ट ऑफ द्रविडियंस इन द इंडियन कल्चर? दीज आर द गिफ्ट ऑफ द्रविडियन इंडियन कल्चर. वेरी ह्यूज इन्फॉर्मेशन, राइट. देन नेक्स्ट, beside nature and animal worship etc., the animal worship and nature worship, these all the concept like same Hindu as a all concept right now apply na, that all the given by the Dravidians. Are there great features? These are the great feature of Dravidians. In the exam they answered which are the great feature of Dravidians. You can say these are the great feature of Dravidians. Original deities of Dravidians have been accepted by the Aryans and were re-established by them as a god of culture with the place of time.
देखो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो कॉन्सेप्ट था ये वर्शिप का, गॉड गॉडिश का, ये स्टोन कल्चर का, सब कुछ जो था धूप दीप आरती का, वो सारा आर्यन ने भी एक्सेप्ट कर लिया और उससे उसके साथ तो मिंगलिंग हो गए। तो आर्यन ने पूरा एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये अच्छी चीज़ है सिविलाइजेशन के लिए, दे एक्सेप्टेड। तो आर्यन ने उसको एक्सेप्ट किया और फर्दर उसको थोड़े बहुत चेंजेस मॉड्यूलेट करने लगे अपने हिसाब से। तो वो हो गया विद द प्लेस ऑफ टाइम। उसके बाद वो चेंजेस होते रहते हैं प्लेस ऑफ टाइम में, रिलीजियस में, बिलीफ में, टेम्पल में, फॉर्मेट में, क्लॉथिस में, मेंटालिटी में, सब में चेंजेस होता रहता है ना। तो वो उस टाइम पे भी हुआ अंडर द ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ। किसके अंडर? नॉर्थ का जो ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस था उसके अंदर हो गया। आर्यन कल्चर वॉज डीपली एंड इंटरलाइज बाय द द्रविडियंस। ठीक, आर्यन कल्चर, प्लीज अंडरलाइन, आर्यन कल्चर वॉज डीपली एंड इंटरनलाइज्ड बाय द द्रविडियंस। जो इंटरनलाइज्ड हुआ उसका जो डीपली उसमें चेंजेस हुए, जो मॉड्यूलेट हुआ, वो पूरा द्रविडियन के इफेक्ट था आर्यन कल्चर। हैंस इंटरकास्ट मैरिज टुक प्लेस। तो उसकी वजह से इंटरकास्ट मैरिज भी स्टार्टिंग हो गया। जो आर्यंस पीपल थे वो मैरिड विद द द्रविडियंस पीपल, द्रविडियन पीपल मैरिड विद द आर्यंस, सो दे आर द मिंगलिंग, they married to each other. These how the intercaste marriage started. Because of Aryan and Dravidian who accept each other cultures, format, most accepted Aryans, follow the Aryans, Dravidian culture followed by the Aryans in short. Dravidians had matriarchal system of family. Please जरा ये underline कर लो. Dravidian had matriarchal system of family, है ना। तो मार्ट्रियार्चल जो सिस्टम थी विच इज़ इंट्रोड्यूस बाय द्रविडियन, ये ज़रा याद रख लेना, ठीक है। जो फैमिली का जो मान मर्यादा, माँ का जो मान होता है, वुमेन्स इंपॉर्टेंस होता है, द्रविडियंस हैड द मार्ट्रियार्चल सिस्टम ऑफ फैमिली। ये पूरा बंधुत्व का जो भाव होता है ये द्रविडियंस ने इंट्रोड्यूस किया था। प्लीज अंडरलाइन, द्रविडियंस हैड matriarchal system of family. Please underline this, a very important point. Okay, Dravidians progress a lot in a different craft and art like building a boat. अभी द्रविडियन लोगों ने कौन कौन से आर्ट, स्कल्पचर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप किया उसके बारे में है। तो प्लीज़ ज़रा मेक श्योर दीज आर द इंफॉर्मेशन विच आर व्हाट काइंड ऑफ डेवलप, व्हाट काइंड ऑफ knowledge and what kind of different kind of progress of Dravidians, that these are here, like buildings of boat and raft. Yeah, this is also given by Dravidians. Building of boat and raft. Weaving also given by Dravidians. Weaving, spinning and dyeing, etc. These are important. Please underline the different craft and art like building a boat, raft, weaving, spinning and dyeing. This is the importance progress of Dravidians. Due to the dominance of Aryans, they shifted to the South Indians settled there. Because of Aryan influence and dominance of Aryan की इंटरफेरेंस की वजह से वो लोग नॉर्थ से साउथ में शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो स्टिल वी कैन कॉल द नॉर्थ साइड, साउथ साइड पीपल एज ए द्रविडियन। स्टिल नाउ वी आल्सो कॉल, ये द्रविड लोग हैं, ऐसा हम बोलते भी है, सुना भी होगा आप लोगों ने। एज अ रिजल्ट टुडे वी कैन सी द पीपल स्पीकिंग द्रविडियन फैमिली लैंग्वेज लाइक। तो विच आर द, जो अभी भी हम बोलते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज जो द्रविडियन फैमिली के है। इन द एग्जाम इफ आस्क विच आर द लैंग्वेज बिलोंग टू द्रविडियन फैमिली, कौन कौन सी लैंग्वेज जो द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती है। इन द एग्जाम यू आस्क, यू विल गिव आंसर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम एक्सेट्रा। मेन लैंग्वेज तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा विच इज बिलोंग टू द्रविडियन फैमिली। दिस लैंग्वेज इज बिलोंग टू द्रविडियन फैमिली, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम द्रविडियंस पैराग्राफ नाउ फिनिश, राइट। सो सम इंफॉर्मेशन आई टोल्ड यू अंडरलाइंस एंड पुट आउट एंड मेक इट शॉर्ट, सो वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, राइट। नेक्स्ट इज अदर ट्राइब। कौन से लोग थे जो अदर ट्राइब में थे? अपार्ट फ्रॉम एबो मैंगोलैंड, अल्पाइन, डिनारिक एंड आर्मोनॉइड ट्राइब्स वर आल्सो देयर इन इंडिया। तो ये लोग भी आए थे इंडिया में। उसके बाद जो मैंगोलॉइड पीपल थे, तो सम इंफॉर्मेशन अबाउट मैंगोलॉइड। सो दे केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ चाइना वाया तिब्बत एंड सेटल डाउन एट नॉर्थ आसाम, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। प्लीज अंडरलाइन, ये मैंगोलॉइड पीपल है, वो बहुत इंपॉर्टेंस है। प्लीज अंडरलाइन दिस वन। दे केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ चाइना वाया तिब्बत। नॉर्थ चाइना का जो इलाका है वहाँ से ये लोग आए, तो याद रखना कहाँ पे सेटल डाउन हुए। जो नॉर्थ साइड के अभी भी स्टेबल है, जो नॉर्थ साइड के जो हमारे स्टेट है, नॉर्थ साइड आसाम, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल, दे आर सेटल डाउन देयर। दे ग्रेजुअली इंडियनाइज देम सेल्वेज। तो उसके बाद वो खुद अपने आप को भारतीय में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। एवरी पीपल केम टू इंडिया, एवरी ट्राइब केम टू इंडिया, देन दे ग्रेजुअली
इंडियनाइज दैट मीन्स भारतीयकरण, इंडिया का हो जाना. And Mongoloid people also the possess the physical characterized like yellow complex. The Mongolian people there, उनका जो Mongoloid peoples possess the physical characteristic like कौन किस प्रकार उसका characteristic दैट मीन what are the physical features they have. they yellow complex फेस होता है उनका, फ्लैट फेस होता है, चुम्बिन चिक होता है, एलमंड शेप आइज कई बता आपने काफ़ी जो स्पोर्टमैन्स हैं, ठीक है, दे ऑल्सो बिलोंग टू द नॉर्थ साइड. तो जो नॉर्थ के पीपल होते हैं, नॉर्थ आसाम के, दैट यू कैन सी इन द लाइक नेपालीज एंड ऑल दैट यू कैन, आई थिंक यू हैव सीन इन होटल एंड ऑल्सो दे वॉकिंग मोर, राइट. दे लुक लाइक दे फ्लैट चाइनीज़ के जैसे लगते हैं थोड़े बहुत. तो आप ज़रा देख लो, याद कर लो थोड़ा. Mongoloid were yellow complex and their skin known as a kirat. Please underline. Mongoloid were of yellow complex and they were known as a kirat. Which people is known as a kirat? तो Mongoloid. Please underline this one, very important. Which people were known as a Mongoloid? तो the kirat. Mongoloid were known as a kirat people. ठीक है. Then है Alpine, Dinakir and Armenoid. These are the people also came to settle down. These people migrate from Central Asia से आए हैं, Central Asia से migrate from Central Asia. Please underline. All these three tribes have similarity. ये तीनों ट्राइब में similarity है. The origins genetics कौन सा है उनका? Of these tribes are found in large number in गुजरात और सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल और उड़ीसा. तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे लिए है बिकॉज वी आर फ्रॉम गुजरात. सो दीज आर द पीपल्स इज originate genetics है और दिस ट्राइब आर फाउंड इन लार्ज नंबर ऑफ गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल और उड़ीसा मिलता है ये अल्पाइन, डिनारिक एंड आर्मनोइड. तो ये जो पीपल है हम कह सकते हैं दीज आर द एंशिएंट पीपल ऑफ गुजरात, राइट. तो ज़रा वो याद रख लेना, ठीक है, बिकॉज ऑफ गुजरातियंस वेरी इंपॉर्टेंस. नाउ फिफ्थ वन इज द आर्यंस. द टू ट्राइब्स वेरी इंपॉर्टेंस, आर्यंस एंड द्रविडियंस. सो दीज आर द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्यंस एंड द्रविडियंस. नाउ आर्यंस, the Nordics, Aryan were the creator of Aryan civilization in India. Please underline the Nordic. Also, Aryan is known as a Nordic people also. The Aryan were the creator of Aryan civilization in India, right. Hindus were called Aryan in the ancient time and the area where they were densely populated was called Aryavarta. यहाँ से पूरा अंडरलाइन करना पड़ेगा. तो हिंदू एज ए कंसिडर हिंदू, आर्यन एज ए कंसिडर एज ए हिंदू, ठीक है. तो अभी वो थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. हिंदू वर कोल्ड आर्यंस, जो हिंदू थे उनको आर्यन कहा जाता था और आर्यन से हिंदू कहा था, दोनों को इक्वली वही नाम होते थे. इन द एंशिएंट टाइम में अभी भी हम जो हिंदू रिलीजियस है दैट वी नो दैट, राइट. इन द एरिया वेयर दे वर डेंसली पॉपुलेट वाज कॉल्ड आर्यवत. उन लोगों का जहाँ पे जो ज़्यादा पीपल्स थे, जहाँ पे जैसे कि यूपी है, बिहार है, और जो इंडिया में तो सबसे ज़्यादा हिंदू है, ठीक है, 80% ऑफ पीपल बिलोंग टू हिंदू रिलीजन्स. तो पहले इंडिया को आर्यवत भी कहा जाता था, ठीक है. हिंदुस्तान, भारत, आर्यवत, इंडिया, दीज आर द नेम ऑफ इंडिया, राइट. तो आर्यवत इसलिए कहा जाता था बिकॉज ऑफ द दे हैव अ मोर पॉपुलेशन ऑफ द आर्यंस, देट वाई आर्यवत. जो आर्यन लोग ज़्यादा थे उन एरिया को आर्यवत कहा जाता था. एज अ 7 रिवर वर फ्लोइंग ओवर देयर, दैट रिलीजियस वाज नेम्ड एज द सप्त सिंधु, ठीक है. तो वहाँ पे जो 7 नदी का जो संगम है वहाँ पे फ्लो होता है, उसको सप्त सिंधु कहा गया था. इन एंशिएंट टाइम द फर्स्ट आर्यन पॉपुलेशन वाज कॉन्सेंट्रेट इन द नॉर्थ वेस्ट में उसका फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट हुआ था. द एरिया ऑफ आर्यवता वाज एक्सटेंड अप टू मिथिला. तो पहले बिहार को मिथिला कहा था, तो आप ज़रा याद रखना, इन द ईस्ट, ठीक है. वो जो पूरा नेपाल के साथ कनेक्टिंग था मिथिला, वो सारा कुछ बहुत डीप में है, वो थोड़ा वहाँ नहीं जाना हमें. तो पूरा आर्य का कंसिडर कहा जाता है. इन द साउथ स्प्रेड अप टू द विंध्याचल ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड. ये मिथिला से लेकर यानी कि नॉर्थ में बिहार से लेकर वो साउथ में विंध्याचल जो है एमपी के आसपास, वहाँ तक वो फैला था. दे वर मोर एडवांस पीपल दैन एनी अदर कंटेम्पररी ट्राइब्स. प्लीज अंडरलाइन द आर्यंस इज अ मोर एडवांस पीपल दैन एनी अदर कंटेम्पररी ट्राइब्स. यानी कि उसके जो समकालीन ट्राइब थे उनसे ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा एडवांस थे, बहुत टैलेंटेड थे. इन शॉर्ट, this vast land was recognized with the various name of Bharat Bhumi, Bharat Khanda, Bharat Varsha, Aryavat also, etc. Right? ये सारे नाम इंडिया के. These are the land which belong to the Aryans at that time. After name of the king आर्य भारत और भारत कुल ट्राइब. तो जो आर्य भारत थे, भरत किंग थे, उसके नाम पे इंडिया का नाम पड़ा. वो जरा आप देख लेना प्लीज़ अंडरलाइन, इसलिए हम इंडिया को भारत कहते हैं, भारत नाम है उसका.
ठीक है. Aryan were natural lover. Please underline. Aryan were natural lover. Which tribe considered as a nature lover? So Aryan is a nature lover. They loved and worshipped the trees. Aryan also loved the worship. This is important information. Full paragraph importance. ठीक है. They loved worship and trees and the river and mountain, the sun, wind and rain. All the things. Aryan is a Hindu like this one. ठीक है. Now we called Hindu, not called Aryan, because Aryan is all the Hindus belong to Aryans. They had composed the hymns यानी ऋचाएँ जो होती है and for praying to the various nature elements. So this paragraph underline full important information about Aryans you have to memorize. Then in due course of the time some religious ceremonies like recitation of Vedas को जो रिसाइट करना था वो भी आर्यन के इंट्रोड्यूस किया है. परफॉर्मिंग योगा यज्ञ एंड अदर्स एक्टिविटीज़ बिकम द प्रिवेलेंट इन इंडिया. ठीक है, तो यज्ञ होता है, फिर रिसाइट होता है, जो प्रार्थना बोलना, सूत्र बोलना, सभी आर्यन इंट्रोड्यूस है. देयर वाज अ फाइन amalgamation of those tribes with their specific style of living and harmonious culture was formed, which gave India a glorious and prosperous heritage. Definitely, these foreigner and Indian tribes amalgamated in such a way over a long period of time, and that they lost their individual identity through the intercaste marriage. देखो इसमें यह है कि आफ्टर द लॉन्ग टाइम दे मिंगलिंग लाइक दिस वे वी कांट रिकॉग्नाइज कि विच पीपल बिलोंग टू विच कास्ट या विच टाइप या विच रिलीजियस लाइक आर्यंस या द्रविडस. वो इस तरह से घुल मिल गए अपने आप में, इस तरह से मिंगलिंग हो गए, अपने इंटरकास्ट मैरिज हुआ और सब कुछ कल्चर गिव एंड शेयर हुआ. तो दे वी कांट रिकॉग्नाइज. और आफ्टर द लॉन्ग टाइम कॉन्सिक्वेंटली आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम दे ऑटोमेटिकली लॉस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी. वो खुद अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी भूल गए. अभी हम हिंदूज हैं तो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि कौन से बिलोंग है, द्रविड़ है, आर्यन, नेगोटिएट, सब जो पीपल कैम टू इंडिया मेनी ट्राइब्स, तो वी कांट रिकॉग्नाइज कि विच जेनेटिक वी बिलोंग. ठीक है, दिस हाउ वी मिंगलिंग ईच अदर. तो वैसा ही हुआ. उसके बाद आउटसाइडर एंड लोकल पीपल वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, नेम्स एंड रिलीजियस बिलीफ एक्सेट्रा. जो आउटसाइडर थे वो भी काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए उनकी वजह से. प्लेड अ विटल रोल इंडियनाइज दिस फॉरेनर्स. सो द आर्यन पीपल प्लेड अ विटल रोल टू इंडियनाइज दिस फॉरेनर्स. सिंस एंशिएंट टाइम द composite cultures has been created in India. These the Aryan people composite the cultures, they mingling the culture, they compound the cultures. It's a very great thing. They all then become, these are the Aryan, Dravidians, Mongolians, Negroid people. They all then become Indian. They after the all they become Indian. उसके बाद सभी भारतीय हो गए. After the period of time they lost their individual identity and they all are the same हो गए. उसके बाद in short in the ancient India the एमलगेमेशन ऑफ वेरियस कल्चर, जो उसका मिंगलिंग हुआ, मिक्सिंग हुआ, उसका जो पूरी तरह से घुल मिल जाना, कल्चर्स एनरिच्ड इंडियन कल्चर बाय मेकिंग इन वेरिएटेड एंड प्रॉस्पेरियस. तो ये पूरी चीज़ों की वजह से इंडिया का जो कल्चर बहुत वेरिएशन प्रॉस्पेरियस हो गया. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर रिगार्डिंग आवर हिस्ट्री, रिगार्डिंग आवर हेरिटेज. सो वी आर द पीपल ऑफ इंडिया एंड दीज आर द information about our forefather, about our ancient people, about our ancient genetics. So now we cannot say that this caste or this particular tribes came to this tribe. We cannot say now. In the India, majority of Hindus, Muslims, Sikh, Isai, many religions who are lives in India. So India is a very varied country. So it's a good thing. So now we have to pause over this point. Right, I want to explain more thing, but because of the time and on video that not possible to give you more lecture, right? So enough for that over here. And now I have to post this video. So next video according to our timetable, and we will learn a video point of this prevention and conservation of heritage. Clear? So please stay on, stay safe, take care of yourself. We will meet soon again. Have a nice day.